So today we are going to start with a very important topic, that is glomerular filtration rate. Okay, glomerular filtration rate. Okay, glomerular filtration rate. This is a very important topic. Okay, it holds a lot of concept that you need to build up to understand this topic. Okay, so we know that what is this? Suppose मान लो this is your vena cava. Okay, suppose मान लो this is your vena cava. And what is the function of vena cava? Vena cava carries blood from different part of your body to the heart. Yes or no? Vena cava carries blood from different part of the body to the heart. So here also vena cava is carrying blood to the heart. हाँ या ना? Vena cava is carrying blood to the heart, and whenever the heart will contract, means during systole, during the ventricular systole, we have learned that during the ventricular systole, the blood, the oxygenated blood, goes via the aorta. Yes or no? Goes via the aorta into the different part of your body. Yes or no? So if heart say blood via aorta, the blood will go into different part of your body. Yes or no? And in this different part of your body, okay, a small portion of the blood will enter into one of the very small vessel, which is called as afferent arteriole of your nephron. Yes or no? So we know that in our kidney there is presence of 1.2 million nephron. Yes or no? So in each kidney there is presence of 1.2 million nephrons. So one kidney 1.2, one kidney 1.2. In total there is 2.4 million nephron that is present. तो मैंने क्या बोला, हार्ट जब ब्लड पंप करेगा via the aorta, the blood will go, and that blood, a very small portion of that blood will enter into nephron via afferent arteriole. Yes or no? Via afferent arteriole. ठीक है ना? So the heart is pumping the blood, and we know that what is the total cardiac output? What is the total cardiac output that we have learned in the last classes? What is the total cardiac output? Cardiac output क्या था? Cardiac output was stroke volume into heart rate. Yes or no? Heart rate into stroke volume was the cardiac output. Yes or no? And we learned that in brief, 5 liter is the cardiac output per minute. Yes or no? So what is the cardiac output? The cardiac output was 5 liter per minute. इसका मतलब क्या है? In 1 minute your heart pumps 5 liter of blood. Yes or no? Via your aorta. Yes or no? So in 1 minute the heart pumps 5 liter of blood via your aorta. And among the 5 liter of blood that the heart has pumped, listen to this very carefully. Among the 5 liter of blood that the heart has pumped, yes or no? Among the 5 liter of blood that the heart has pumped, 20%, okay, 20% of that 5 liter of blood, okay, क्या बोला मैंने? 20% of that 5 liter of blood enters into afferent arteriole. क्या बोला मैंने? Total 5 liter is the cardiac output, and among this 5 liter, 20%, okay, of 5 liter, which is approximately 1 liter. Yes or no? Which is approximately 1 liter. So this 1 liter per minute of blood will enter into afferent arteriole. क्या बोला मैंने? 1 liter per minute of the blood will enter into afferent arteriole. ठीक है? So heart कितना पंप किया? 5 liter. Among this 5 liter, only 1 liter will enter into afferent arteriole per minute. समझ में आ गया? Now 1 liter, can we write this 1 liter as 1000 ml per minute? Yes or no? 1000 ml per minute is now entering into afferent arteriole. So if you look here, the diameter is pretty big. Here the diameter is nearly smaller. So this is afferent arteriole, this is your efferent arteriole, and in between this you have the tuft of capillary, and this tuft of capillary is nothing but your glomerulus.
ये सुन लो, दिस shaft of capillary is nothing but your glomerular. So क्या बोला मैंने, 5 liter of blood has been pumped out by the heart. Among that 5 liter of blood that has been pumped out by the heart, ठीक है ना, 20% of that 5 liter, okay, 20% of that 5 liter, ये फैन ऑफ कर दो, 20% of that 5 liter, okay, so among the 5 liter of the blood that has been pumped, 20% of 5 liter, that is only 1 liter of blood has entered into the afferent arteriole, है ना? So we can differentiate that 1 liter into 1000 ml, right? Yes or no? Now listen to this very carefully. Among this 1 liter, there is differentiation into two parts. It is divided into 400 ml and 600 ml. ठीक है, this 1 liter is further divided into 400 ml and 600 ml. ठीक है, अब ये जो 400 ml है, ओके, अब ये जो 400 ml है, this 400 ml constitute of all the other thing which can't be filtered out. समझ में आ रहा है? 400 ml इंक्लूड ऑल द अदर थिंग व्हिच कैन बी फिल्टर्ड, जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा, जैसे कि तुम्हारा आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, सेलुलर कंपोनेंट है, प्रोटीन्स है, ग्लूकोज है, जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है, वो इधर फिल्टर हो पाएगा क्या? इधर हमने क्या देखा था कि इन दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ओके, इन दिस पार्ट देयर आर प्रेजेंस ऑफ माइन्यूट पोर्स ना, ये सुनो, इन दिस पार्ट देयर इज प्रेजेंस, ओके, इन दिस पार्ट देयर इज प्रेजेंस ऑफ माइन्यूट पोर्स, ये सुनो, ठीक है ना? तो इधर माइन्यूट छोटा 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 पोर्स होगा, पोर्स होगा तभी तो इधर से इधर फिल्ट्रेट आएगा, है ना? पोर्स होगा तभी तो इधर से इधर फिल्ट्रेट आएगा. नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. among this 400 ml, ये 400 ml क्या है? this 400 ml is nothing but your RBC plus your WBC plus the proteins plus the glucose, जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है, which can't be filtered. yes or no? this constitute the 400 ml, है ना? तो जब ब्लड आता है, ब्लड का सेल का भी फिल्टर होता है क्या? सेल फिल्टर होता है क्या? सेल अगर फिल्टर होता तो हमारे यूरिन का कलर रेड होता ना, तब तो यूरिन में भी खून आ जाता है ना? तो ये ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना. तो ऑल द सेलुलर कंपोनेंट, योर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्रोटीन, ग्लूकोज, ये कभी आता है क्या ब्लड यूरिन में? नहीं. अगर आएगा तो क्या है? बीमारी है. ये सुन लो. तो रिमेनिंग 600 ml जो है, रिमेनिंग 600 ml इज गोइंग टू बी फिल्टर्ड. ये सुनो, रिमेनिंग 600 ml इज गोइंग टू बी फिल्टर्ड. अब ध्यान से सुनो, इस 600 ml में, ओके, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, इन दिस 600 ml, जो इधर 600 ml फ्री पड़ा है ना, इस 600 ml में भी ओनली 20%, इस 600 ml में भी ओनली 20% ऑफ 600 ml एंटर्स इनसाइड. क्या बोला मैंने? ओनली 20% ऑफ 600 ml enters inside. So 20% of 600 ml means 20% of 600 ml means बोलो 20% of 600 ml means, আরে তোরা এডি করতে এতক্ষণ লাগে, প্লাস ওয়ান এর বাচ্চা হতে এর থেকে ফার্স্ট করে, ঠিক है ना? तो 20% of 600 ml means, वाह, आंसर क्या है? 120 ml. ये सुन लो. तो among the 20, इधर देखो, तो इधर कितना है? 400 ml. इधर कितना है? 600 ml. 400 ml तो ऐसे ही फिल्टर नहीं होगा. बाकी कितना है? 600 ml. उसी 600 ml में से only 20% of the 600 ml, that is 120 ml per minute, है ना? कितना आ रहा है? 120 ml per minute. ये सुन लो, this 120 ml per minute is going to enter inside. ये सुन लो, 120 ml per minute is going to enter inside. समझ में आ रहा है ना? और बाकी जो ब्लड है इधर में, बाकी जो ब्लड, इधर देखो ध्यान से, बाकी जो ब्लड है, दिस रिमेनिंग ब्लड विल गो आउट वाया द इफरेंट आर्टेरियोल. ये सुन लो, बाकी जो अमाउंट ऑफ ब्लड है, दिस ब्लड विल गो आउट थ्रू दिस इफरेंट आर्टेरियोल. हाँ या ना? अब देखो इफरेंट आर्टेरियोल, देखो कैसे, हाउ इट इज कॉइलिंग अराउंड योर रेनल ट्यूब्यूल. ये सुनो, देखो दिस इफरेंट आर्टेरियोल, ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है, इफरेंट आर्टेरियोल कैसे कॉइल हो रहा है ना अराउंड योर
रेनल ट्यूब्यूल, ये सुनो। और इधर देखो एक कैपिलरी का नेटवर्क बना लिया, है ना। इधर देखो एक कैपिलरी का नेटवर्क बना लिया ना, एंड दिस कैपिलरी नेटवर्क इज कॉल्ड एज पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। ये सुनो, इट इज कॉल्ड एज पेरीट्यूब्यूलर capillaries, हाँ या ना। This network that has been formed, this network is called as peritubular capillary, हाँ या ना। This network is peritubular capillary, yes or no? अब देखो, what we have discussed that whenever peritubular capillary will be formed, whenever peritubular capillary will be formed, this capillary will further join to form renal vein, हाँ या ना। लास्ट क्लास में हमने देखा था, हमने बोला था डायरेक्टली वेन नहीं बनता, है ना। तो जो इफरेंट आर्टेरियोल है वो फर्दर डिवाइड करेगा, किसमें डिवाइड करेगा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में डिवाइड करेगा। फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी देखो डायरेक्ट, इधर देखो, इधर देखो, ये देखो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जा रहा है ना, ये सुन लो, देखो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जा रहा है ना। ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी इधर आते आते क्या बना लिया, रेनल वेन बना लिया। क्या बना लिया, रेनल वेन बना लिया, है ना। क्या बना लिया इधर, रेनल वेन बना लिया। और फाइनली देखो ये रेनल वेन कहाँ जाके जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इनटू योर वेना कावास। अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है, वेना कावा। तो ये जो रेनल वेना कावा, व्हाट आर वेना कावास, वेना कावास आर नथिंग बट ग्रेट वेन्स। ये सुन लो, मैंने तुम्हें एक हिस्ट्री स्टोरी बताया था ना मेरे वाइवा का, हार्ट का स्पेसिमेन दिया था, बोला था व्हाट स्पेसिमेन इज दिस, बोला था ना। नहीं बोला तुम लोगों को, हम, हाँ नहीं बोला था तुम लोगों को, क्या बोल रहे हो। हाँ बोला था, बिना कहा, बिना कहा हार्ट का स्टोरी नहीं बोला था। मेरा फर्स्ट ईयर में वाइवा हुआ था, फर्स्ट ईयर का यूनिवर्सिटी एग्जाम था। यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसे, नहीं ब्लड टेस्ट नहीं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में वाइवा होता था। ठीक है, वाइवा में हमें स्पेसिमेन देता था, लाइक लाइव स्पेसिमेन होता है, लीवर का स्पेसिमेन होता है, किडनी का होता है, टेस्टिस, ओवरी, सब ऑर्गन का स्पेसिमेन होता है। सो रेंडमली द एग्जामिनर विल टेल यू टू pick one of the organ. So I picked one human heart. Okay, then they told me, then she asked me what is the name of this organ. ये बोला मुझे, what is the name of that organ and hold it in anatomical position. जैसे कि मैं तुम लोगों को बोलता हूँ ना anatomical position में खड़े हो जाओ, वैसे you have to place all the organs in anatomical position also. Suppose तुम्हें एक bone मिल गया, you have to show that bone in anatomical position. तुम्हें एक organ मिल गया, you have to show that organ in anatomical position. Means how exactly in your body the organ is located. ठीक है। तो इसके बाद मुझे बोला व्हाट इज द नेम ऑफ, ये क्या है, मुझे ये बोला ये क्या है। मैंने बोला दिस इज अ स्पेसिमेन ऑफ ह्यूमन हार्ट। फिर बोला हाथ दो। फर्स्ट ईयर में, ये कॉलेज का बात है, कॉलेज में डंडा देके बहुत जोर से मारा मुझे। मैं सोच रहा हूँ कि हुआ क्या तो हार्ट ही है, क्या बात है, क्यों मार रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम था, तो हमारे एक एचओडी है, एचओडी का नाम था मंजूरी चटर्जी। वो बाहर से आता था, कोलकाता से आता था। सो शी बीट मी वेरी हार्ड। इसके बाद बोला ध्यान से देखो ये क्या है, मैं फिर से बोला ह्यूमन हार्ट, फिर से मारा। फिर बोला दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ ह्यूमन हार्ट अलोंग विथ टू ग्रेट वेसल। क्योंकि हार्ट के साथ जो वेना कावा जो है ना वो कटा हुआ था, तो वेना कावा भी ऐसे, इधर एक वेना कावा, इधर ऊपर एक वेना कावा, दो वेना कावा दिखाई दे रहा था। तो क्यों नहीं बोला मैं वेना कावा, तो इसलिए मारा। So this is a specimen of human heart along with two great vessels, superior vena cava and inferior vena cava and superior vena cava. तो इसलिए वेना कवा होल्ड वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। क्योंकि वेना कवा इज टेकिंग योर ब्लड फ्रॉम एंटायर पार्ट ऑफ योर बॉडी टू द हार्ट। सो इधर देखो, ये फाइनली देखो रेनल वेन किससे मिल गया, वेना कवा से मिल गया। और फाइनली वेना कवा ब्लड कहाँ लेके जा रहा है, हार्ट में लेके जा रहा है। ये सुनो, हार्ट ब्लड कहाँ लेके जाता है, लंग्स में लेके जाता है, लंग्स से फिर वापस कहाँ आता है, हार्ट में आता है। कैन यू कोरिलेट ऑल दिस थिंग, कैन यू कोरिलेट ऑल दिस थिंग। नहीं हो रहा है ना कोरिलेट, हो रहा है कोरिलेट, नहीं हो रहा है, कैसे होगा, पढ़ाई तो नहीं करते। हाँ हो रहा है ना, वेरी गुड। अच्छा, ठीक है। तो दिस इज योर, तो देखो 120 ml/minute, 120 ml/minute एंटर्स इनटू द बाउमेंस कैप्सूल से, कहा निकल गया, पीसीटी में गया ना। 120 ml, हाँ ना, 120 ml/minute इज नाउ एंटरिंग इनसाइड। ये सुनो, 120 ml/minute। अब मुझे ये बताओ, ये तो एक मिनट का हो गया। नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट इट फॉर अ डे, क्या बोला मैंने, इफ आई वांट टू कैलकुलेट इट फॉर अ डे, एक दिन का अगर मुझे कैलकुलेशन करना है तो मैं कैसे कैलकुलेशन करूंगा। एक दिन में देर इज 60 मिनट, ये सुन लो,
और हाउ मेनी आवर्स 24 आवर, तो 60 इंटू 24 करो, 60 इंटू 24 करो, जल्दी जल्दी करो, कैलकुलेटर से करो। 1440, ये सुन लो। तो ये कितना है, ये कितना है, मिनट है ना, ये सुन लो। और 1 मिनट में कितना ब्लड जाता है, 120, सो 120 इंटू 1440। अब बोलो, अब बोलो, 120 इंटू 1440, जल्दी जल्दी कैलकुलेटर लेके जल्दी जल्दी करो। अरे कैलकुलेटर ने हाथ बोलो, 172800, ये कितना है, ml है ना, ये सुन लो, है ना। तो कैन वी राइट इट एज 1.73, कैन वी राइट इट एज 1.73 लीटर, ये सुन लो, 1.73 लीटर पर मिनट, ये सुन लो, कैन वी राइट इट एज 1.73 लीटर पर, मतलब पर मिनट तो अब नहीं होगा, ये सुन लो, 1.73 लीटर, ये सुन लो, कैन वी राइट इट एज 1.73 लीटर, ये सुन लो, ठीक है ना। तो इतना ml है, ये क्या है, 1.73 लीटर हो गया, ठीक है ना। तो अब देखो इन जनरल, अब देखो इन जनरल 1.73 लीटर पर डे हम क्या करते हैं, यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। सो दिस इज द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ यूरिन दैट इज एक्सक्रीटेड, ये सुनो, कैन आई फाइनली टेल दैट दिस इज द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ यूरिन दैट इज एक्सक्रीटेड। ये सुनो, ये तो नहीं है ना कि 1 मिनट में 5 लीटर, तो पूरा दिन में सोचो कितना लीटर यूरिन, ठीक है ना, है ना। तो अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो, ओके, तो 1172800 था ना, ये सुन लो, है ना। तो इसको हम, ये फिर से देखो, ये देखो 172,800 ml, इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना लीटर होगा, 1.73 तो नहीं होगा, 1.73 तो नहीं होगा, ठीक है ना। एक लीटर कितना लीटर होगा, हाउ मेनी लीटर विल बी देयर, 100 होगा ना, हाँ वेरी गुड। अब 1000 होगा तो कितना लीटर होगा, ये बोलो, वेरी गुड। तो हम कैन वी राइट इट एज 173, ये सुनो, कैन वी राइट इट एज 173 लीटर, ये सुनो। नाउ लुक एट दिस, 173 लीटर ऑफ यूरिन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड पर डे, तो इतना लीटर यूरिन आता है क्या, इज देयर एनीबॉडी हु एक्सीड 173 लीटर पर डे, ठीक है ना। तो वन तो 173 लीटर, अब देखो ये जो 173 लीटर यूरिन है, ठीक है, लुक एट दिस, ये जो 173 लीटर यूरिन है, ये कहाँ फॉर्म हुआ, इधर फॉर्म हुआ ना, 173 लीटर यूरिन। अब नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, इस बार इस 173 लीटर में से, ठीक है, इस 173 लीटर में से 99% गेट रीएब्सॉर्ब्ड, ठीक है। इस 173 लीटर में से कुछ रीएब्जॉर्प्शन इधर होगा, कुछ रीएब्जॉर्प्शन इधर होगा, ये कौन सा क्या है, अच्छा कुछ रीएब्जॉर्प्शन इधर होगा, कुछ इधर होगा, कुछ इधर होगा, कुछ इधर होगा, ऐसे करके कहा क्या, कौन है बता ओके, तो रीएब्जॉर्प्शन, तो रीएब्जॉर्प्शन होता जाएगा, समझ में आ रहा है बात। तो पूरा ट्यूब्यूल्स में, है ना, ये देखो, अल्टीमेटली यूरिन कहाँ फॉर्म हो रहा है, इधर फॉर्म हो रहा है ना, ये सुन लो। तो इधर से नियरली 99%, okay, nearly 99% gets reabsorbed, okay, nearly 99% gets reabsorbed, ठीक है। तो इस 173 लीटर में से नियरली 99% गेट्स रीएब्सॉर्ब, और 99% रीएब्सॉर्प्शन होने के बाद अल्टीमेटली जो यूरिन फॉर्म होता है वो कितना होता है, 1.73 लीटर, ठीक है। अल्टीमेटली जो यूरिन फॉर्म होता है वो कितना होता है, 1.73 लीटर, समझ में आ रहा है बात। सो 173 लीटर पर डे फॉर्म होता था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से, ट्यूब्यूल में जितना आया था, है ना। नाउ इस 173 लीटर में से 99% गेट्स रीएब्सॉर्ब, अब 99% रीएब्सॉर्प्शन होने के बाद कितना यूरिन फॉर्म हुआ, 1.73 लीटर। So what is the normal volume of urine that has been formed? It is 1.73 liter per day, है ना, 1.73 liter per day, and this is called as the glomerular filtration rate, समझ में आया, this is called as
द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, नाउ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब हम बोलेंगे तो फाइनल ये वाला पॉइंट हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट व्हेनेवर विल टॉक दैट इधर ग्लोमेरुलस में कितना फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ। ठीक है, इस हिसाब से हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। जनरली जो नॉर्मल जीएफआर होता है इट इज लाइक 125 ml पर मिनट। ठीक है, तो नॉर्मल जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है वो कितना होता है, 120 से 125 ml पर मिनट होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ये वाला क्या है, देखो इधर देखो, एब्जॉर्ब हुआ ना, कहा एब्जॉर्ब हुआ, ग्लोमेरुलस से एब्जॉर्ब हुआ, ग्लोमेरुलस से कितना एब्जॉर्ब हुआ वो क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसके बाद ये क्या है, दिस इज द ट्यूब्यूलर फिल्ट्रेट, फाइनली जाके यूरिन फॉर्म हुआ। समझ में आ रहा है, तो द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट दैट इज बीइंग फॉर्म्ड पर मिनट is called as the glomerular filtrate. And what is the glomerular? Write it down. The glomerular filtrate is 1.25. Write it down. Write it down. The glomerular filtrate. The glomerular filtrate is 120 to 125 ml per minute. Yes or no? And 99% of glomerular filtrate gets reabsorbed in the kidneys. Yes or no? 99% of the glomerular filtrate gets reabsorbed in the kidneys. Ultimately, 1.73 liter per day urine is formed. Yes or no? Is reabsorbed in the kidney by the tubules. Okay, ultimately 1.73 liter per day urine is formed. समझ में आया ना? So this is the entire funda of the glomerular filtration rate. ठीक है, डन ना? So this is about your glomerular filtration rate. Now we are going to